हमने इलेक्ट्रिक करंट फिनिश किया था। इलेक्ट्रिक करंट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करता है। उसके कारण एक इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले कि जब हमारे पास कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, दैट इज गिवन बाय बायोट-सावर्ट्स लॉ। व्हाट इज दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ? क्या स्टेट करता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ कि दिस इज ए कंडक्टर and in this conductor I current is flowing. You will consider a small element dl of this conductor. इस कंडक्टर का एक हम स्मॉल एलिमेंट dl लेते हैं, तो इसके कारण इस पॉइंट A के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दिस इज ए पॉइंट A एट डिस्टेंस r, इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी that is given by this Biot-Savarts law. According to this Biot-Savarts law, magnetic field produced this point A dB is directly proportional to the current flowing through it, directly proportional to the length of this element, directly proportional to the sign of the angle between this position vector and current element. This angle, let it be, this is theta, and inversely proportional to the square of the distance. So these are the four factors on which this magnetic field produced at point A due to this current carrying conductor. Now we can write that this dB is equal to, that is K I dl sin theta by r square. So this is the Biot-Savarts law. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, so here dB वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KI dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ r वेक्टर क्यूब. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट किस पॉइंट A के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज perpendicular to the plane in which dl vector and r vector is existing. Means अगर suppose here dl and r vector are existing in the plane of this white board, then direction of magnetic field will be here, this one. Or you can say that this dB vector is making an angle 90 degree with this r vector as well as this dl vector. One thing is very important here. Here dl vector itself is not a vector quantity. Its direction is taken as that of direction of current. If here current is as flowing in the upward from upward direction, so direction of the dl element will be here, this one. If here current is flowing in the downward direction, direction of dl vector will be in the downward direction. Clear? So this is the, here K is the constant of proportionality. Its value is given by, that is K is equal to mu naught upon 4 pi, and that is equal to 10 raised power minus 7 Tesla meter per ampere. This is 10 raised power minus 7 Tesla meter per ampere. Clear? Now what is mu naught? Mu naught is here known as magnetic permeability. Here mu naught is the magnetic permeability. अगर हम देखें कि what is the difference between Coulomb's law and this magnetic field, वहां पे Coulomb's law में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, KQ by r square. सिमिलरिटीज देखें, in both the cases electric field and magnetic field are inversely proportional to the square of the distance. Means both are obeying the
इनवर्स स्केयर लॉ. इन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या था हमारे पास, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या थी, दैट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. और यहां पे क्या है हमारे पास म्यू नॉट, दैट इज द मैग्नेटिक परमिटिविटी. वहां पे जो आपके पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, चार्ज था. यहां पे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट एलिमेंट है. रिमेंबर हियर वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस आइडियल इज नोन एज करंट एलिमेंट. इस आइडियल को हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं. व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज. डिसिमिलरिटीज क्या है, देखिए जो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी थी दैट इज ऑलवेज इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर थी. लेकिन यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच position vector and this current element vector are existing, or we can say here direction of magnetic field is perpendicular to the position vector. Clear? And electric field में क्या था कि आपके पास that is not depending upon the angle between position vector and charge, but here there is one more factor on which the magnetic field is, strength of magnetic field is depending, that is depending upon the angle between the position vector and current element. Clear? Electric lines of force क्या थी, they are starting from positive charge, they are ending at negative charge, they are not forming a closed loop, but here magnetic lines of force are forming a closed loop. So these are the similarities and dissimilarities between the electric and magnetic field. Clear? Now अब मैंने जैसे आपको यहां पे शो किया कि दिस dB वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर है. इट मींस दैट हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल? व्हाट इट स्टेट्स कि विद कर्ल आवर फिंगर्स फ्रॉम dl vector to r vector, then this thumb is giving the direction of the magnetic field. अगर हम अपने फिंगर्स को कहां से कहां कर्ल करें, dl से r वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं तो ये थंब क्या दे रहा है हमें, दिस थंब विल गिव दी डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. क्लियर? नाउ देयर इज अनदर वे जिसको कि हम जब कभी भी हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम हमेशा वही फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल यूज करने की कोशिश करेंगे. बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल है. व्हाट इज दिस फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल? कि if we adjust the thumb of our right hand in the direction of current, thumb को हम करंट की डायरेक्शन में एडजस्ट करें, palm is adjusted in the direction of position vector, palm को किधर एडजस्ट करें, in the direction of position vector, then pushing palm will give the direction of magnetic field. In this case जैसे this is the current is flowing in the direction of thumb, here palm is adjusted in the direction of this position vector, then pushing palm is giving the direction of magnetic field. Means in this case the direction of magnetic field will be represented by here this cross sign. What is the meaning of this cross sign? Here magnetic field is perpendicular to the plane of the paper inward. अगर यहीं पे करंट क्या है, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, if the current is flowing in the downward direction, ये थंब आप इधर नीचे एडजस्ट हो जाएगा, palm in the direction of position vector. Now my palm is coming outward, so here direction of magnetic field will be perpendicular to the plane of the paper outward. And remember कोई भी magnetic field की डायरेक्शन है वो perpendicular to the plane of the paper, plane of the paper or board, blackboard or whiteboard outward है,
that is represented by dot sign. Reverse is also true. If anywhere this cross magnetic field is represented by this cross sign, that means that here direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the paper inward. If anywhere the magnetic field is represented by this dot sign, that means that here magnetic field is perpendicular to the plane of the board outward. Clear? So in this way, with the help of this Biot-Savart law, we can calculate the magnetic field intensity due to a straight conductor, due to a circular ring, due to a solenoid. तो different आपके पास कंडक्टर्स के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर by using Biot-Savart law. So suppose we are having a straight conductor and we are considering a point. एक हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं कि जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. सो दिस इज ए स्ट्रेट कंडक्टर. ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है. क्लियर? और इसमें क्या हो रहा है? एक करंट आई फ्लो कर रहा है. इन दिस स्ट्रेट कंडक्टर आई करंट इज फ्लोइंग. क्लियर? And here is a point A at a distance. What distance? At a distance R, जहां पे हमने magnetic field intensity कैलकुलेट करनी है. तो how we will calculate the magnetic field intensity at this point A due to this straight conductor? इसको कैलकुलेट करने के लिए what we'll do? We'll consider a small element dl on this straight conductor. इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर एक हम स्मॉल एलिमेंट dl लेंगे. सपोज दिस इज एट ए डिस्टेंस x. कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? x डिस्टेंस के ऊपर है. कहां से? पॉइंट A से. और ये जो एंगल है आपके पास कितना है? दिस एंगल इज लेट इट बी थीटा. ये थीटा एंगल है. अब इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस करंट एलिमेंट के लिए क्या यूज कर लेंगे? Biot-Savart law यूज कर लेंगे. Now according to Biot-Savart law, what is here? dB क्या होगा? KI/dl sin theta divided by R divided by here R is replaced by x square होगा. Clear? No problem. Now अब हम क्या करेंगे? ये कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं इस स्ट्रेट कंडक्टर का एक एंड, वन एंड, लोअर एंड इज मेकिंग एन एंगल φ1 और दूसरा एंड जो है वो कितना एंगल बना रहा है? दैट इज मेकिंग एन एंगल φ2. इसके दोनों एंड्स कितने एंगल बना रहे हैं? φ1 और φ2 एंगल बना रहे हैं. और जो हमने एलिमेंट dl लिया है वो इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? लेट इट इज मेकिंग एन एंगल φ. नाउ इस पॉइंट A के ऊपर जो हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, दैट वी विल फाइनली कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ I, R, φ1 एंड φ2 की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे. अब यहां पे जो बाकी फैक्टर जो हैं x, थीटा और l, इन सभी फैक्टर्स को हम we will try to convert into φ1, φ2 और R में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. How will convert it? एक ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया है. क्या? This is A, B, C. This is a triangle. Let ये जो आपके पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वजह से हमें जरूरत नहीं है. Now this is a triangle ABC. पहले तो हम x को R में कन्वर्ट कर दें. कैसे? देखिए यहां पे इस ट्रायंगल में देखें r by x क्या होगा? व्हाट इज दिस r by x? दिस इज इक्वल टू cos phi. क्लियर? तो x क्या आ गया आपके पास? r by cos phi आ. क्लियर? तो आपके पास ये वाला फैक्टर कन्वर्ट हो गया किसमें? phi में. अब रह गया आपके पास ये थीटा. इसी ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से देखें हमारे पास क्या होगा? थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है. तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी?
दैट इज इक्वल टू सॉरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5। तो आपके पास थीटा फैक्टर भी कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास फैक्टर रह गया DL। अब हम देखें कि आपके पास ये जो x बाय आर है, x इज इक्वल टू क्या है, r बाय cos फाई है। क्लियर। और अगर हम ये लिखें, ये डिस्टेंस मान लें, ये जिसको हम पहले मान रहे थे, हम कहते कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब ले लेते हैं कि लेट दिस डिस्टेंस इज L। ये डिस्टेंस कितना है, L है। तो इस ट्रायंगल ABC में ही देखें तो आपके पास व्हाट इज हियर, L बाय R। L बाय R क्या होगा, दैट इज इक्वल टू tan फाई। तो L क्या आ जाएगा आपके पास, R टेंजेंट फाई। क्लियर। नाउ इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं L इज इक्वल टू R टेंजेंट फाई को विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो क्या आ जाएगा, DL बाय D फाई दैट इज इक्वल टू R सीकेंट स्क्वायर फाई आ जाएगा। तो DL की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू R सीकेंट स्क्वायर फाई D फाई। क्लियर। तो अब हमारे पास DL भी फाई की टर्म में कन्वर्ट हो गया, थीटा भी फाई में कन्वर्ट हो गया, x भी फाई में कन्वर्ट हो गया। तो ये सभी वैल्यूज हम किस में, ये सभी वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, व्हाट विल बी हियर, इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, dB इज इक्वल टू KI R सीकेंट स्क्वायर फाई D फाई। साइन थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज साइन 90 माइनस फाई। x की वैल्यू क्या है, R बाय cos फाई, दिस बिकम्स R स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई बन जाएगा। क्लियर। ये सब कुछ हो गया। अब देखें यहां पे कौन कौन से फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और कौन से फाइनली हमारे पास बन रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहां पे ये आपके पास R और R स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, दिस बिकम्स, ये क्या रह जाएगा, सिंपल R रह जाएगा। साइन 90 माइनस फाई, ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos फाई बन जाएगा। सीकेंट स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 बाय cos स्क्वायर फाई है। तो ये सीकेंट स्क्वायर फाई और cos फाई स्क्वायर भी हम आपस में यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ गया, दैट इज KI, फाइनली क्या बन गया, KI cos फाई D फाई डिवाइडेड बाय R बन गया। क्लियर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट DL। इस कंडक्टर के स्मॉल एलिमेंट DL के कारण आ गई। अगर अब हमने निकालनी है होल कंडक्टर के कारण निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इस सारे रिजल्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां, फाई 1 से फाई 2 के बीच में इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2 KI cos फाई D फाई डिवाइडेड बाय R। क्लियर। अब यहां पे KI बाय R क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है। इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई क्या होगा, दैट इज इक्वल टू साइन फाई फाई 1 टू फाई 2। क्लियर। तो दिस बिकम्स KI बाय R, this becomes, that is sine phi 2 minus sine of sine phi 1. Clear. So this becomes K की value, this becomes KI by R sine phi 1 plus sine phi 2. Clear. No problem at all. ठीक हो गया। सो दिस इज द K को हम क्या लिख सकते हैं, हियर K कैन बी रिटन एज अगेन म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट कैन बी रिटन एज, सो दिस इज फाइनल रिजल्ट। द फाइनली B एट दिस पॉइंट क्या आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R
ब्रैकेट में क्या होगा, sin phi 1 plus sin phi 2. So this is the magnetic field density due to a current carrying state conductor. Clear? तो ये हमारे पास इस करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गई है। अगर यहां पे ये पॉइंट ए क्या है, दिस पॉइंट ए इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द मिड ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर के मिड से एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे phi 1 और phi 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। phi 1 और phi 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो phi 1 phi 2 इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में ये आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, दिस रिजल्ट बिकम्स, इफ इट इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, पॉइंट ए इज लाइंग फ्रॉम द मिड ऑफ द कंडक्टर, तो उस केस में phi 1 इज इक्वल टू phi 2 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट I sin phi अपॉन 2 pi r बन जाएगी, क्योंकि दिस बिकम्स 2 sin phi, 4 और 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो दिस बिकम्स म्यू नॉट I sin phi अपॉन 2 pi r बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपके पास ये पॉइंट ए इस स्टेट कंडक्टर के क्या है, कहां पे लाई कर रहा है, एक स्टेट कंडक्टर के एक एंड से लाई कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम दी वन एंड ऑफ दिस कंडक्टर, तो उस केस में अगर दूसरा एंड इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, वो कितना एंगल बना रहा है, लेट इट इज मेकिंग एन एंगल phi, तो उस केस में क्या हो जाएगा, phi 1 क्या हो जाएगा 0, phi 2 क्या हो जाएगा 0, phi 1 क्या हो जाएगा phi। इन दैट केस आपके पास, क्योंकि हेयर इफ इट इज दिस इज द सिचुएशन, तो आपके पास हेयर phi 1 इज phi एंड phi 2 क्या हो जाना है, आपके पास 0 हो जाना है, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स म्यू नॉट I sin phi अपॉन 2 pi r बन जाएगी। b is equal to mu naught I sin phi upon 2 pi. Clear? No problem at all. Now, if it is a infinite long state conductor है, अगर यही कंडक्टर क्या है, infinite long है, infinite long है, तो उस केस में phi 1 is equal to phi 2 is equal to क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो केस में डिस्कस कर रहा हूं कि अगर यही स्टेट कंडक्टर आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग है, मींस ये भी इसका एंड नहीं है, ये भी इसका एंड नहीं है, उस केस में व्हाट विल हैपन कि आपके पास ये जो पॉइंट ए है, ये होगा पॉइंट ए का दूसरे एंड के साथ भी कोई एंगल नहीं है, इस एंड के साथ भी कोई एंगल नहीं है, तो phi 1 क्या होगा π/2, phi 2 भी क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, मींस phi 1 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो आपके पास थर्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के कारण आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I phi की वैल्यू π/2 है, sin π/2 1 होता है, तो क्या बन जाएगी, म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r आ जाएगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। अगर ये आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है और पॉइंट A is lying at the one end of this infinite long state conductor, I am sorry here they have last case में this is here 4 pi r, infinite long state conductor है और point A is lying from the one end of this infinite long state conductor, उस केस में phi 1 π/2 हो जाएगा, phi 2 0 हो जाएगा, तो आपके पास B की वैल्यू क्या बन जाएगी, that becomes B is equal to म्यू नॉट I अपॉन 4 pi बन जाएगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर फ्रॉम इट्स वन एंड। क्लियर? सो दिस इज द फ्रॉम हियर दिस बायोट-सावर्ट्स लॉ, जैसे हमने एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, फिर उस लॉन्ग एक स्टेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, अगर उस लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की फाइनाइट लेंथ दी हुई है उसके कारण भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इनफाइनाइट लेंथ दी हुई है तो हम उसके कारण भी कैलकुलेट
कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, डायरेक्शन क्या होगी इस केस में, अगर यहाँ पे करंट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तब आपके पास इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्लियर। अगर इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी थी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होनी थी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, दिस इज ए करंट कैरिंग circular ring, let this circular ring is lying in xy plane, xy plane में पड़ी हुई है। रेडियस ऑफ दिस रिंग इज I, इसका रेडियस कितना है R है, और इसमें ऐसे करंट I फ्लो कर रहा है। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। हियर इज ए पॉइंट A, यहां पे आपके पास एक पॉइंट A है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, This point A is at a distance x, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, x डिस्टेंस के ऊपर है। कहां से है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, और इस पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल डू एक यहां पे स्मॉल एलिमेंट dl ले लेंगे। विल कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl विच इज कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसका, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। अब ये जो आपके पास एंगल है इस पोजीशन वेक्टर के साथ, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना बना रहा है, दिस एंगल इज हियर 90 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम बायोट-सावर्ट्स, फिर अगेन विल यूज बायोट-सावर्ट्स लॉ। व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, dV क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, K_I_dl sin थीटा डिवाइड बाय I_dl sin थीटा बाय क्या होता है, दैट इज R स्क्वायर। हियर थीटा क्या है आपके पास 90 डिग्री है, R किससे रिप्लेस हो जाएगा हियर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगी, K_I_dl sin 90 क्या बन जाएगा 1 divided by under root of r square plus x square whole square, so this becomes r square plus x square। तो इस सर्कुलर रिंग के एक स्मॉल एलिमेंट dl के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, लेकिन हमने टोटल रिंग के कारण निकालनी है, तो क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ K_I_dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहां पे K_I फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dl, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, तो वो कितना होगा, दैट इज 2 pi r। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dl दैट बिकम्स 2 pi r, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स Ki 2 pi r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। K की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 pi। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट A ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग क्या आ जाएगी, दिस बिकम्स म्यू नॉट I r डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर, नो प्रॉब्लम। यहां पे अब हमने जो गलती की है तो इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट टाइम जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि इसी आर्टिकल को कैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग को यूज करके हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इट। क्लियर, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों as you know my all these classes are dedicated to these corona warriors of this nation and
पीएम केयर फंड। सो बच्चों, आपको इस एटमॉस्फेयर में स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है। ये सब कुछ करके आपने कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। इसके लिए जो भी आपके पास कोरोना से बचने के लिए छोटे छोटे से जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। जैसे आपने अपने हैंड वॉश, जब भी कभी किसी चीज़ को बाहर जाते हो, टच करते हो, तो आपने घर आकर हैंड वॉश अच्छी तरह करना है। और बाहर जाकर जब कभी भी किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो आपने उन हैंड्स को कभी भी एटलीस्ट जब घर से बाहर हो तो आपने अपने हैंड्स को अपने आईज के साथ या माउथ के साथ, नोज के साथ टच नहीं करना है। और जब भी टच करना है उससे पहले आपने हैंड को अच्छी तरह वॉश करना है। ऐसे नहीं है कि आपने सिंपल पानी के नीचे हाथ रख लिया, ऐसे ऐसे कर लिया और हैंड वॉश हो जाएंगे। अच्छी तरह सॉप लगा के पूरी तरह से रब करके हथेलियों को भी, फिंगर्स को भी, फिंगर्स के बीच में जो गैप है और हैंड्स के ऊपर भी यहाँ तक के आकर आपने अच्छी तरह अपने कम से कम 20-25 सेकंड लगाकर आपने अपने हैंड्स को वॉश करना है। मास्क आपने लगा के ही रखना। जब भी आप बाहर जाते हो तो आपके ऊपर मास्क होना चाहिए और मास्क को बिल्कुल टच ना करिए। आपने कभी अगर बाहर मास्क को ऊपर नीचे करना है तो साइड से आपने, यहाँ से, ये नहीं बीच में से ऐसे उठा के ऊपर कर रहे हो, साइड से उठाकर आपने मास्क को ऊपर नीचे करना है। तो हम इस कोरोना वायरस के, इस कोरोना से बचने के लिए एक छोटा सा हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।